Assalamu alaikum students. I'm your course instructor of business finance. Today's our topic is time value of money. Yeah. Uh, this is our recorded session, and after this session, I will send you an assignment and quiz. You will return myself within a short time period. Which time period will you given? G. Let's students. The chapter is time value of money. After studying this chapter, you should be able to understand what is the time value of money. In this topic, I clearly describe the meaning of time value of money, and after studying this topic, and after studying the definitions of time value of money, you will easily understand what this meant by the time value of money. Second learning objective is understand the relationship between present value and future value. What is the relationship between present and future value? After the studying this topic, you will be able to understand the difference between the present value and future value. The third objective is describe how the interest rate can be used to adjust the value of cash flows, both forward and backward, to a single point in the time. After studying this topic, you will be able to calculate the interest rate and adjustment of interest rate of value in the cash flow statement, both forward and backward. Next objective is calculate both the future and present value. In this topic, we will calculate the both future value and present value and amount invested today, and on stream of equal cash flows and in annuity sense. And the third one is a stream of a fixed cash flows. Next learning objective is distinguish between an ordinary entity and ordinary entity 2. There's two major types of annuity, ordinary entity and annuity 2. We will distinguish in this chapter between the ordinary entity and annuity 2. Use interest factor table. We will use the interest factor table to understand how they provide a shortcut to calculating the present value and the future value. We will use the table and put the values from the table and calculate the present and future values. Use interest factor tables to find an unknown interest rate. If the interest rate is not given and the sum is given, then we will calculate at what rate of interest the compounded amount will be given or will be received. So then we will calculate the interest rate by using the interest factor table, or growth rate, where when the number of time periods and future and present values are known. Build an amortization schedule for installment style loan. In this chapter, in the time value of money, we will calculate the amortization schedule and installment of loan. Time value of money. We What is the simple interest rate, or you can see the interest rate? Interest rate is comprising in the following types. First is the simple interest rate. Time value of money, we will calculate the interest rate. Interest rate calculations are the different methods. Number one is the simple interest rate, then we will calculate the compound interest rate, then amortization of loan, then compounding more than one per year. If the loan prolong more than 1 year, then it will be the interest rate will be charged compounded annually. Then in this topic, we will calculate the compounding interest if the loan amount exceeded more than 1 year. Interest rate, what is the interest rate which would you prefer, 10,000 today or 10,000 in 5 years? Obviously 10,000 today, not after 5 years. You already recognize that there is the time value of money. Why? That it is the recognized the value of money, instead of after taking 10,000 after 10 years. Why not today? So then it is a time value of money. Why time much such an important element in your decision?
Why it is important? Time allows you the opportunity to postpone consumption and earn interest. बेसिकली आप क्या करते हैं कि टाइम क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? टाइम आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपको अलाउ करता है, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज को पोस्टपोन करके आपकी जो कंजम्पशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अर्न करें, ताकि आपकी जो है वो आपकी जो है वो अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाए, वो इंटरेस्ट हो जाए. टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, नाउ वी विल go to the next slide. And the first type of interest, that is a simple interest. Interest paid earned on only the original amount of principal borrowed lent. यानी कि इसमें कहता है कि आपने बारो अमाउंट की है, ओरिजिनल अमाउंट की है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं. या आपने लेंट की हुई है तो वो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. दैट्स योर सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट पेड अर्नड ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्नड एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल बारोड. यानी कि आप क्या करते हैं कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसे क्या करते हैं, जो आपने प्रीवियसली जो है वो अर्न किया हुआ है इंटरेस्ट आपका है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप उसके ऊपर क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं. दैट विल बिकम योर कंपाउंडेड इंटरेस्ट. Simple formula of simple interest is equal to SI is equal to P naught into Y into N. SI is equal, when we are, I am going to elaborate the formula. What is SI, what is P naught, what is I, and what is N? SI is equal to simple interest. P naught is the deposit today. P is equal to 0. I is equal to interest rate per period and the number of time periods. यानी कि ये फॉर्मूला में ये बता रहा है कि आपने SI is equal to P naught into I into N. SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें. P naught जो आपने आज रकम डिपॉजिट करवाई है वो P naught है. I क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, ये आपको पर पीरियड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दिया जा रहा है. एंड यानी नंबर ऑफ टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपने जो है वो इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट रिसीव करना है या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो वो हमारा फार्मूला क्या होता है? SI is equal to P naught into I into N. Repeatedly, SI is equal to simple interest, P naught is the deposit today, and I is the interest rate per period, and N is the number of the time period. Hope you will understand this formula. Simple interest example now showing on your screen. Simple interest example, and with the help of this example we will calculate the simple interest rate, and we will understand better than how we calculate the interest rate. Assuming that you deposit $1,000 in an account earning 7% simple interest for 2 years, what is the accumulated interest at the end of the 2 years? In this example, he says you have a $1,000 and the rate of interest is 7%. You deposited for the period of 2 years. At the end of the 2 years, how much amount you will receive along with the interest? Now the formula is SI is equal to P naught. P naught is the amount invested into I is the interest rate, and N is in the year. In the next row, P naught is 1,000. It is the amount which you are deposited in the bank into I is the interest rate. It is 0.07. 0.07 7% mean percent, 7 over 100. When we divide 7 over 100, then the result will be 0.07, and and N is the number of years, and then multiply that with 2, the number of years. 1,000 multiplied by 0.07 multiplied by 2, the total interest amount will become 140. And after the end of 2 years, you will receive 1,140 along with the interest. 1,000 your principal amount which you deposited at the start, and rupees 1 and $140 is your interest rate which you earn on your deposit after 2 years. Simple interest future values. Now we will discuss the simple interest future values. What is the simple interest future value? What is the future value of the deposit? What is the future value of the deposit? Future values is equal to P naught, you get the principal amount which you are deposited plus SI simple interest 1,000 plus 140, the total amount 1,140. This is the future amount which will you receive after 2 years of the deposit if the interest rate is 7% and deposit period is 2 years.
Future value is at some future time of a present amount of money. It is a some present amount of money, is a future time of present amount of money. The What will you be receive in the future, if you deposit the present amount of money is your future value, or a series of payments evaluated at a given interest rate. If you are depositing a series of amount, then the series of amount deposited is your present money, present deposit, and what will be you receive after accumulation after 2 3 or 4 years your future value. अब इसमें हम करते ये है कि आप जब अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं वो आपका इनिशियल डिपॉजिट है, वो 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल के बाद जो आपको मिलेगा वो आपकी क्या है, वो फ्यूचर वैल्यू जो है वो आपकी कहलाती है। तो आप जिस तरह आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि आपने जो है वो 1000 रुपए डिपॉजिट किया फॉर द पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, और आपको क्या हुआ कि आफ्टर 2 years जो है वो 140 इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 की प्लस 140 आपने इसमें ऐड किया, तो 1140 रुपए आपकी क्या होगी, वो फ्यूचर वैल्यू आपकी जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। Simple interest present value. What is the simple what is the present value of the previous problem? अगर हम previous problem की बात करें, what is the present value? तो अगर हम present value की बात करें, the present value is simply the 1000 you really deposited. आपने जो really deposit 1000 किया वो आपकी क्या है, वो present value है, that is the value today, कि आज उसकी value कितनी है। मुझे 1140 रुपए 1140 rupees you receive after 2 years. What is the present value of today? Before passed into in 2 years when you deposit this amount, then this is a simply that is the 1000 you deposit before 2 years, and the present value is rupees 1000. Present value is the current value of the future amount of money, the future amount which you will receive, what is the amount of today which will you receive in future, कि आपने इसको फ्यूचर में जो 1140 रिसीव और उसकी आज वैल्यू कितनी है, that is your present value, और a series of payments evaluated at a given interest rate, या आपकी सीरीज ऑफ आप डिफरेंट सीरीज जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसकी आज वैल्यू कितनी है वो आपकी क्या होती है, वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो है वो कहलाती है। तो इन द करंट सिनेरियो today what the amount of 1140 receive after 2 years, what is the amount before 2 years 1140, that is the 1000 which you deposit today. Why compounding interest? Future value of a single 1000 deposit, simple interest 10% है, कंपाउंडिंग 7% है, 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फ्लो चार्ट के अंदर, तो आपका फर्स्ट ईयर है, 10th ईयर है, 20 ईयर है और 30 ईयर्स है, और आपकी जो है वो अगर आप डॉलर्स में देखिए 5000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, यानी कि जैसे आप कंपाउंडेड करते चले जाएंगे आपकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज जो है वो होती चली जाएगी। फ्यूचर वैल्यू सिंगल डिपॉजिट ग्राफिक, अगर आप फ्यूचर वैल्यू देखिए सिंगल डिपॉजिट, अज्यूम दैट यू आर डिपॉजिट रुपीज 10,000 एट अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट 7% फॉर द ईयर 2 years, 0 years है, 7% है, फिर 1 year आ जाएगा और फिर दूसरा साल आपका आ जाएगा। 1000 आपकी क्या है जी, वो फ्यूचर वैल्यूज 2 आ जाती है आपकी। अब देखिए फ्यूचर वैल्यूज 1 is equal to P naught is the principal amount you deposit today into 1 plus I raised to power 1, तो हमने जो है वो उसकी रेस्ट टू पावर 1 किया, तो हम क्या करते हैं 1000 इंटू 1 प्लस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 0.7%, तो 1.07 रेस्ट टू पावर 1 होगा, तो ये 1.07 आएगा। वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.07, देन द अमाउंट विल बिकम 1070 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यू अर्नड $70 इंटरेस्ट ऑन यूर 1000 डिपॉजिट ओवर द फर्स्ट ईयर, ये पहले साल जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की उसके ऊपर आपको कितना मिला है, वो $70 जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। दिस इज द सेम अमाउंट इंटरेस्ट यू वुड अर्न अंडर सिंपल, ये वही अमाउंट है जो आपने सिंपल इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो अर्न की थी। वहां पे भी आपने क्या किया था, 2 years का आपने डिपॉजिट करवाया था और आपको $140 मिले थे, और 2 सालों के बाद आप मल्टीप्लाई बाय प्लस 1000 किया, तो आपको 2 सालों के बाद सिंपल इंटरेस्ट में $1140 जो है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल आपको मिले थे। नाउ अब यू विल सी द अब यहाँ पे जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट फार्मूला, अब इसको हम जो है वो आपको चेक कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिफरेंस उसके अंदर आ जाता है।
फ्यूचर वैल्यू F1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट P नॉट इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1। हमने क्या किया 1000 इंटू 1 प्लस आई का जो आई था वो 07 था, 1.07 हो गया, मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ तो 1070 आ गया। अब फ्यूचर वैल्यूज 2 की बात करें, जब दूसरे साल में हम जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस्ट पावर 1। हमने क्या पी नॉट प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, ठीक है, क्योंकि हमने टू टाइम इसलिए किया कि हमने रेज टू पावर 2 लेनी है। या फिर आप क्या करें जी, पी प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 कर लेंगे तो 1000 इंटू 1.07 1.07 या 1000 इंटू 1.07 रेज टू पावर 2 कर लेंगे। तो जब आप इसकी रेज टू पावर 2 करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट, आपकी जो अमाउंट निकलेगी वो 1144.90। अब अगर आप इसको कंपेयर करें अपने सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ था कि आपने 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट डिपॉजिट कराया था तो आपको $140 जो है वो इंटरेस्ट मिला था, प्लस किया आपने प्रिंसिपल अमाउंट 1000 में तो $1140 मिले थे। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड किया तो 1070 है, विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है वो आपका जो है वो 1070 डॉलर्स के ऊपर होना है। तो आपने किया तो आपका कितना है $1144। इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको $140 आपको जो है वो इंटरेस्ट मिला और कंपाउंड के अंदर आपको जो है वो $144.90। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के साथ उसे कंपेयर करें तो आपको $490 एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अर्न करना पड़ा है। यू अर्न एन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन $4.90 इन 2 ईयर विद कंपाउंडिंग ओवर सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आप अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट के अंदर अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको क्या हुआ एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट की $4.90 जो है वो ज्यादा अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है। तो आपको जो है कंपाउंडेड इंटरेस्ट है उसके अंदर हमें जो है वो बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलता है, लिहाजा कंपाउंडेड एनुअली जो है वो आपके लिए ज्यादा मोस्ट सूटेबल जो है वो इन्वेस्टमेंट है। जनरल फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला अगर हम बात करें तो फ्यूचर वैल्यूज 1 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। अगर 2 इयर्स का हो गया है तो फिर क्या होगा, फ्यूचर वैल्यूज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। ठीक है जी। जनरल फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला आपका क्या होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इंटू पी नॉट यानी कि आपकी जो अमाउंट है इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। या आप क्या करते हैं फ्यूचर वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है इनडेफिनेट पीरियड है जो भी आपको मेंशन किया, मोर देन 2 इयर्स है, 3 है, 5 है या 10 है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर आई कॉमा एन। तो ये अगर हम ये वाला दूसरा वाला फार्मूला लिखते हैं तो फिर हमें जो है वो उसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे टेबल से वैल्यू लेंगे और उसको हम क्या करते हैं उसके अंदर जो है वो पुट अप कर देंगे और हमारी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। अब वैल्यूएशन यूजिंग टेबल, अब आपने टेबल को कैसे यूज करते हुए वैल्यू करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई एन इज फाउंड ऑन टेबल 1 एट द एंड ऑफ द बुक। अब सारी बात है जो बुक है उसके आपको जो रिकमेंड की हुई है उसके एंड के ऊपर जो है वो आपको क्या किया हुआ है कि डिफरेंट जो है वो टेबल्स गिवन है और उन टेबल्स के अंदर आपने जो है वो क्या करना है वहां से आपने जो है वो ले लेना। इस तरीके से आपको जो है वो दिया होगा कि आपको जो है वो पीरियड गिवन होगा, ठीक है, नीचे पीरियड होगा जिस तरह यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 और उसके पैरेलल आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट दिया 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और जो भी इंटरेस्ट रेट जाता है 20 30 या उसके हिसाब से आपको जो है वो टेबल में अमाउंट गिवन होगी। यहाँ पे आप देखें कि आपका डिपॉजिट कितना है वो 2 इयर्स है। तो आप अगर 6% पे करें तो आपका इंटरेस्ट फैक्टर आता है 1.124, 7 पे करें 1.145 और 8% पे करें तो 1.166 आता है। अब हमारा जो है इंटरेस्ट रेट कितना है जो कंपाउंडेड एनुअली है वो 7% है और टाइम पीरियड 2 है। आपने साइड पे देखा टाइम पीरियड 2 के सामने आप सीधी रो में गए 7% के ऊपर, तो वहां पे आपको जो है ये देखें रेड कलर के अंदर उसे हाईलाइट भी किया हुआ है 1.145 आपका जो है वो इंटरेस्ट फैक्टर है। अब आप क्या करते हैं नेक्स्ट देखिए जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर 7% और आपने सेकंड कॉलम में देखना है। आपने क्या किया 1000 सेकंड कॉलम में आपको दिया है जी इंटरेस्ट फैक्टर जो दिया है 7% के ऊपर दूसरे साल का दूसरे टाइम पीरियड का वो जी 1.145 दिया है। तो आपने क्या किया 1.145 लिख दिया और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 1145। अब अगर हम प्रीवियस अब जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो हमारा 1144
144.9 सिफर आया था, यानी कि हमने $4.90 एक्स्ट्रा अर्न किया था इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट की, अगर हम उसे कंपाउंडेड इंटरेस्ट के अंदर जो है वो लेके जाए। अब क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्योंकि हमें अमाउंट दी हुई है 1.145, यानी कि पॉइंट के बाद 3 फिगर्स के अंदर हमें जो अमाउंट दी हुई है, तो हमने इसे क्या करना था, थर्ड फिगर में जाके इसको राउंड ऑफ कर लेना होता है। जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमारा 1.1490 था, तो हमने जब इसके राउंड को हम ये कहते हैं जब 0.5 से ज्यादा चीजें चली जाती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, राउंड ऑफ नेक्स्ट रुपी के अंदर कर देते हैं। तो ये 90 है 90 पैसे, तो हमने इसे राउंड ऑफ किया तो हमने नेक्स्ट रुपी में ले गए, तो हमारा क्या है 1145 जो है वो हमारे डॉलर्स आ गए। यानी कि हमने क्या किया, एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट के वहां पे हमने जो है वो $5 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो अर्न कर लिया। होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आ रही होगी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑन द कैलकुलेटर, अब सारी बात है कि अगर आप करेंगे, लेट्स सपोज अगर 2 पीरियड है, फिर तो आपने 1.07 और 1.072 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड जो है वो 30 ईयर्स हो, 40 ईयर्स हो, या आपका जो है वो क्वार्टरली हो या मंथली हो और 5 ईयर्स का हो, तो सारी बात है आपने 60 टाइम इसको कंपाउंड करना है। तो सारी बात है कि इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको 60 टाइम क्या करें, वो मल्टीप्लाई कर सके। तो यहाँ पे आप देखें स्लाइड के अंदर जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर उसको जो है वो कैलकुलेट करने का जो है प्रोसीजर बताया हुआ है। यूजिंग द हाईलाइटेड रो of key for solving any of the present value, future value, present value annuity, present future value annuity, present value annuity, future value interest factor dividend है, और present value interest factor जो है वो आप present value interest factor discount है, और future value interest factor discount problem। यानी कि अगर आपने इनमें से कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कैलकुलेशन हैं जिनके लिए ये जो हाईलाइटेड येलो कलर की मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसको उसकी मदद से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपने अगर फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यूज को करना है, फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी को करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी को करना है, फ्यूचर वैल्यूज एन्युटी डिस्काउंट को करना है, या आपने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी डिस्काउंट को करना है, तो आप कैलकुलेटर के ये जो रो के अंदर 1 2 3 4 5 बटन है, इनको यूज करते हुए आप क्या करते हैं, अपनी जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये जो बटन है, पहला जो आपका बटन है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो एन है। एन है नंबर ऑफ पीरियड्स। ये हम इसको हम बटन को यूज करते हैं कि कितने टाइम पीरियड्स के लिए आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वो 10 है, वो 12 है, वो 15 है, वो 20 है, आपने जो है वो एन को जो है वो क्या नाम है यूज करना है। उसके बाद आई ओवर वाई लिखा हुआ है। ठीक है जी। आई और वाई के इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये बटन यूज होता है कि आपने जैसे प्रेस करके जो है वो क्या करना है कि वो मेंशन करना है कि कितना आपका इंटरेस्ट रेट, कितने पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट रेट पर पीरियड आपका कितना इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पीवी। पीवी का बटन यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू के लिए। किसके लिए होता है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू के होता है। अगला बटन है पीएमटी, पेमेंट पर पीरियड, आपकी पेमेंट कितनी है, और आगे एफई आपकी फ्यूचर वैल्यूज कितनी है। अब रिपीट करता हूं मैं इस साइज जो है वो इन पांचों बटनों को। एन का जो बटन है वो आपको बताता है, वहां पे आपने एन प्रेस करके लिखना है नंबर ऑफ पीरियड्स, कि आपके कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, कितने टाइम पीरियड का आपने इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आई ओवर बाई इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, कि आपका इंटरेस्ट रेट पर पीरियड कितना है। पीवी आपका प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है। पीएमटी है जी पेमेंट पर पीरियड आपकी कितनी दी हुई है। उसके बाद एफई आपका ये फ्यूचर वैल्यूज का बटन होता है। ठीक है जी। आपने अपनी एक अमाउंट कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आपने करना है जी कंट्रोल टीवीएम करना है। कंट्रोल टीवीएम यानी कि क्लियर्स ऑल द इनपुट्स इनटू द अबव टीवीएम कीज, कि आपने क्या करना है कि आपने जो है वो सीएलआर का बटन दबाना है। उसके बाद आपने जो है टीवीएम सीएलआर टीवीएम का बटन दबाना है, क्लियर्स ऑल द इनपुट्स इनटू द अबव टीवीएम कीज, ताकि वो आपकी जो है वो तमाम के तमाम क्लियर्स हो जाए, और फिर आप उसके बाद अगली कैलकुलेशन करने की जो है वो पोजीशन के अंदर आ जाए। यूजिंग द टी आई बॉल प्लस कैलकुलेटर, यानी कि अब आप क्या है इसमें अपने टी आई बॉल्स प्लस आपने कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, इनपुट्स और कंप्यूट आपने कैसे करना है। इनपुट में एन है, एन आई ओवर वाई, पीवी, पीएमटी और फ्यूचर वैल्यूज। ठीक है। फोकस ऑन द थर्ड रो, यानी कि आपने जो इसकी थर्ड रो है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। द की विल बी डिस्प्लेड इन स्लाइड्स एज शोन अबव, तो आपको इस तरीके से स्लाइड्स के साथ वो कीज नजर आएंगी, जो कि आप ये जिसके साथ आपने जो वो शोन अबव है, जिसके साथ आपने जो है वो कैलकुलेशंस करनी है। अब आपने प्रेस क्या करना है जी,
अब अर्निंग एंटरिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम, अगर आपने फ्यूचर प्रॉब्लम को एंटर करना है तो उसका जो है वो आपको फंक्शन क्या होता है, पहले आपने जो है वो प्रेस करना है सेकंड फंक्शन को, फिर आपने CLR TBM को करना है, ठीक है जी। फिर आपका जो है वो N2 टू आपने पहले प्रेस करना है, फिर आपने N को प्रेस करना है, फिर आपने 7 प्रेस करके 1/y को बटन को प्रेस करना है, फिर आपने -1000 आपने करना है, तो PV आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, 0 आपने PMT पेमेंट करना है, और CPT के बटन को प्रेस करके आपने FV को प्रेस करना है। अब मैं रिपीट करता हूँ कि आपने बटन कैसे प्रेस करने हैं, ताकि आप जो है वो इजीली जो है वो फ्यूचर वैल्यूज को जो है वो आप एंट्री जो है वो फ्यूचर वैल्यू जो है वो आप एंटर कर लें, ठीक है जी। क्योंकि फ्यूचर वैल्यू अगर आप एंटर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू को एंटर करेंगे तो फिर आपने जो है वो वहां पे -1000 इसलिए कहा कि हमारी 1000 की पेमेंट है, और हमने 1000 का जो हमें सम इन फ्यूचर में मिल रहा है, जो फ्यूचर में जो सम मिला है अगेंस्ट द 1000, तो उसका हमें जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उसको -1000 कर दिया। अगर हमें फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती तो फिर हम -1000 लिखते, सिंपल 1000 लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। प्रेस आपने क्या करना है जी, सेकंड फंक्शन क्लियर TBM आपने कर देना है, फिर आपने नंबर ऑफ पीरियड से पहले 2 सालों का इंटरेस्ट कर रहे हैं तो आपने प्रेस 2, और साथ आपने N को प्रेस कर देना है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 7, उसके बाद आपने 1/y वाला बटन प्रेस कर देना है, -1000 आप लिखेंगे और साथ PV का बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद 0 PMT 0 पेमेंट्स आपने की है, उसके बाद CPT का बटन प्रेस करके FV का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको जो है वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। इनपुट कंप्यूट कर ले जी, N2 है 1/y 7 है, प्रेजेंट वैल्यू -1000 है, PMT पेमेंट 0 है, फ्यूचर वैल्यूज आपकी 11,144.90 1144.90 है। N2 पीरियड्स एंटर S2, एंड जब आप 2 पीरियड्स एंटर करेंगे, 2 पीरियड्स हैं तो आप एंटर S2 के तौर पे आपको करेंगे। 1/i 7% इंटरेस्ट पीरियड एंटर एज 7 नॉट 0.07, क्योंकि आपने इसको 7 करना है, 0.07 नहीं करना, क्योंकि आप कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 1/y, इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली खुद ही इसको 0.07 कर लेगा। अगर आप 0.07 करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 0.07 इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगे हैं, तो आगे आपका जो कैलकुलेटर है उसकी जो है वो 0.07 के ऊपर उसकी कैलकुलेशन को ले जाएगा, जबकि आपने 7% के ऊपर करनी है। प्रेजेंट वैल्यू $1000 एंटर एज नेगेटिव एज यू हैव लेस, ठीक है जी। आप क्या करते हैं, इसे नेगेटिव करते हैं, एज यू एज लेस PMT नॉट रेडिबट इन दिस सिचुएशन एंटर एज 0। इस सिचुएशन के अंदर पीरियोडिक पेमेंट नहीं हो रही, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर पीरियोडिक पेमेंट हो रही होती तो फिर आप 1000 को जो है वो ऐड करते, तो इसलिए जो है वो आप उसको जो है वो PMT को जो है वो एंटर करते हैं। जब आपको पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आपकी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो फिर हम PMT को एंटर करते। और फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट रिजल्टिंग आंसर इज पॉजिटिव, सारी बात है। फिर आप जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर आपका क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। स्टोरी प्रॉब्लम एग्जाम्पल को देखें जी। जूली मिलर वांट्स टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट ऑफ 10,000 टुडे will become at a compound annual interest rate of 10% after 5 years। वो जो एक पर्सन है जूली मिलर, वो कहता है कि उसको जो है वो 10,000 रुपया का जो है वो डिपॉजिट चाहिए टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट, उसका डिपॉजिट कितना बड़ा हो सकता है 10,000 टुडे आज, कि अगर आप उसे जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दें और 5 सालों के लिए कंपाउंडेड एनुअली लिए। अब देखें यहाँ पे आपको जो है वो 5 इयर्स का टेबल जो है ग्राफ गिवन है, 0, उसके बाद 10% है, 1 2 3 4 5 है, 10,000 है, और आपके ने उसकी जो है फ्यूचर वैल्यूज आफ्टर 5 ईयर कैलकुलेट करनी है कि आफ्टर 5 इयर्स की जो है फ्यूचर वैल्यूज कितनी बनती है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द जनरल फार्मूला, पहले हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन करते हैं जनरल फार्मूला के बेस के ऊपर, कि जनरल फार्मूला के बेस के ऊपर हमारी जो है वो क्या जो है वो कैलकुलेशन बनती है। कैलकुलेशन हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यूज आपकी है वो n इज इक्वल टू आपकी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं इनटू 1 + i रेज़्ड टू पावर n। जब आप फ्यूचर वैल्यूज आपकी n कितनी 5 इयर्स के बाद आपने कैलकुलेट करनी, इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 10% है तो 10/100 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, 0.10 रेज़्ड टू पावर 5 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.10 रेज़्ड टू पावर 5 लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 10,000 के साथ, तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो
0.10, यानी कि वो जो आपने 10,000 आज डिपॉजिट करवा रहे हैं कंपाउंडेड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, वो आफ्टर 5 ईयर जो है वो 16,105 रुपए आपके बनेंगे, यानी कि 6,105 रुपए 10 पैसे, 6,105 रुपए 10.10 आपको जो है वो इन फ्यूचर के अंदर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेंगे, यानी कि वो जो 10,000 आप आज डिपॉजिट करवा रहे हैं 10% कंपाउंडेड एनुअली, वो आफ्टर 5 ईयर्स आपको $16,105.10 आपको जो है वो वापस मिलेंगे। अगर आप इसकी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द टेबल, अगर आप इसकी टेबल के ऊपर आप देखें तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू 5 इज इक्वल टू $10,000 इंटू फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर 10% एंड 5 नंबर एंड 5 5 पीरियड्स के लिए, तो क्या होता है जी 10,000 इंटू आपकी जो टेबल में वैल्यू आई है वो आपकी आती है 1.611, यानी कि आपने साइड पे 5 पीरियड 5 देखना है और पीरियड 5 की सामने रो में देखना है कि 10% के ऊपर क्या आपको जो है वो फ्यूचर वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर का रेट क्या गिवन है 10% के ऊपर, वो है 1.611। तो आप जो है वो 10,000 को 1.611 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16,110 आ जाती है आपकी, कितनी है जी, ड्यू टू राउंडिंग। अब सारी बात है ये हमने क्या करनी होती है, क्योंकि राउंड ऑफ करनी होती है, टेबल के वैल्यू अंदर जो वैल्यू होती है उसमें स्लाइड सा डिफरेंस आता है और हम उसको राउंडिंग ऑफ के ऊपर लेके जाते हैं, तो 16,110 इसके ऊपर जो हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब आपने जो है वो एंटरिंग द फ्यूचर वैल्यू प्रॉब्लम, अब आपने फ्यूचर वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो उसको करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं जी, पहले आपने प्रेस करना है सेकंड फंक्शन को, जब आप सेकंड फंक्शन को प्रेस करेंगे उसके बाद आपने क्लियर टीवीएम तमाम ट्रांजैक्शन को क्लियर कर देना है, क्योंकि ये हम इसलिए करवाते हैं कि सम टाइम आपने ऑलरेडी कुछ ट्रांजैक्शन उसमें ऐड की होती हैं और आप उसको क्लियर करना भूल जाते हैं, जब क्लियर करना भूल जाते हैं तो एक और ट्रांजैक्शन एंटर होती है, तो वो दोनों जो कैलकुलेटर है दोनों को मिक्स करके उसका रिजल्ट दे देता है और उसकी वजह से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो आपने सबसे पहले सेकंड फंक्शन करके क्लियर टीवीएम और जो है वो टोटल आपने तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस को ऑलरेडी क्लियर कर देना है। फिर हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, आपने क्या करना है जी, 5 प्रेस करना है पहले और फिर एन। 5 इसलिए प्रेस करते हैं, 5 आपका नंबर ऑफ पीरियड है, आप 5 सालों के बाद उसकी जो है फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो 5 एन करेंगे, उसके बाद 10 आई ओवर वाई, 10 क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 प्रेस करेंगे, आई ओवर वाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या ले लेगा, 10% ले लेगा, 0.10 नहीं लेना, तो वो अगर आप 0.10 करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो 0.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा और डिवाइडेड बाय 100 कर देगा। तो क्योंकि हमारा 10% है तो आपने 10 उसके बाद 1 ओवर वाई की प्रेस करनी है, आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो -10,000 आपने लिखना है, साथ आपने पीवी का या फिर इनके प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका बटन प्रेस कर देना है। पीएमटीज आपकी 0 है तो 0, और आपने 0 के बाद आपने पीएमटी आपने जो है वो पीरियोडिक पेमेंट्स आप नहीं कर रहे, अगर पीरियोडिक पेमेंट्स करेंगे तो फिर जितनी पीरियोडिक पेमेंट हो रही है आपने उसको प्रेस करना है। अब यहाँ पे कोई पीरियोडिक पेमेंट नहीं हो रही, आप वंस जो है वो 10,000 जो है वो जमा करवा रहे हैं, तो 0 ओके 0 लिख के फिर आपने पीएमटी का बटन कर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सीपीटी का बटन प्रेस करना है, उसके साथ आपने एफवी के बटन को क्या कर देना है, वो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एफवी के बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो आंसर है 16,105.10 जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इनपुट्स के N5 है, आई ओवर वाई 10% है, पीवी -10,000, क्योंकि आप एक ही दफा करवा रहे हैं, अगर आप 10,000 हर साल 1,000 करके करें तो फिर पीएमटी आपका 10 आएगा, क्योंकि पीएमटी आपने एक ही दफा करवाई है तो पीएमटी आपकी इसलिए 0 आ जाएगी, और जब आप इसको जो है वो कंप्यूट करेंगे तो ये आपकी जो है वो फ्यूचर वैल्यू 16,105.10 आ जाएगी। द रिजल्ट इंडिकेटिंग दैट अ 10,000 इन्वेस्टमेंट दैट अर्न्स अ 10% एनुअल फॉर 5 ईयर विल रिजल्ट इन अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ $16,105.10। अब इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, आपको जो आपने डिपॉजिट को है 10,000 और आपको मिल रहा है 16,105, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 वो ये इंडिकेट कर रही है कि आपने 10,000 जो है वो 10% एनपी के ऊपर जो है वो 5 सालों के लिए जो है इन्वेस्टमेंट की, अमाउंट डिपॉजिट करवाई, और आफ्टर 5 इयर्स आपको जो फ्यूचर वैल्यू जो मिली है वो क्या है, वो आपको 16,105 रुपए आपको जो है वो मिली है। डबल यूर मनी, अब आप क्या चाहते हैं कि अपनी अमाउंट को क्या करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, ठीक है जी, डबल यूर मनी, या आपकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, क्विक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक
to double $5,000 at a compound rate of 12% per year approximately। वो कहता है जी हम जल्दी से देखते हैं इसको कि जो है ना हम ये चाहते हैं कि हमारी जो अमाउंट है हमारा जो वो कितने सालों के अंदर डबल हो जाए, 5,000 डबल हो जाए और कंपाउंडेड रेट हमारा 12% है, तो हमें जो है वो क्या कितने हाउ डस कितना टाइम लेगी 12% के ऊपर 5,000 हम डिपॉजिट करवाएं तो आप ये अमाउंट डबल हो जाए। अब यहाँ पे हमें एन टाइम पीरियड नहीं गिवन, ठीक है जी, हमें ये उसने बताया कि 5,000 आप डिपॉजिट कर रहे हैं, 12% आपका कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट है। आप कहते हैं कि कितने टाइम के अंदर हमारी ये डबल हो जाएगी कि 5,000 इनिशियल आपका डिपॉजिट है, 5,000 आपको इंटरेस्ट मिल जाए, टोटल आपको जो कंपाउंड अमाउंट है कितनी रिटर्न हो जाए, वो 10,000 जो है वो रिटर्न हो जाए आपको। वी विल यूज द रूल ऑफ 72, ठीक है जी। अब ये 72 का रूल क्या है जी, ये देखें अप्रोक्सीमेटली ईयर टू डबल क्या है 72 ओवर आई, 72 का मतलब है एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं 12 तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, तो हम क्या करते हैं कंपाउंडेड करें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपका जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। हम 72 ओवर आई इंटरेस्ट रेट कर देते हैं, तो 72 ओवर इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है जी, वो 12% है, तो हमारे कितने निकल आते हैं 6 ईयर्स निकल आते हैं। एक्चुअल टाइम पीरियड हमें जो रिक्वायर्ड है 6.12 ईयर्स चाहिए। तो इसको हम अप्रॉक्स ईयर्स को कैसे करते हैं कि हमें जो है वो जो हमारा जो अप्रॉक्स टाइम पीरियड है उसको हम क्या करते हैं कि हम करते हैं 72 यानी कि 6 और डिवाइडेड बाय 12% करते हैं तो 76 ईयर्स आदमी हमारे जो वो कैलकुलेट हो जाते हैं। इनपुट आप क्या करें जी, एन आपने क्या करना है जी, वो आपको नहीं पता, जारी बात है, आपने कैलकुलेट करना है कि आपको कितने सालों में चाहिए। आई और वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है और वो कितना आपको 12% गिवन है, तो हमने 12 लिख दिया। प्रेजेंट वैल्यू हमें जो है वो 1000 गिवन है। पीएमटी 0 हम इसलिए लिखते हैं कि हमें पता है कि हमने एक दफा ही पेमेंट कर दी है, यानी कि हमने पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं की हुई। प्लस 2000 आपको जो है वो फ्यूचर वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो क्या था, रिजल्ट इंडिकेट्स दैट 1000 इन्वेस्टमेंट that earns 12% annually will double to 2000 in 6.12 year। यानी कि अगर आप इसमें ये कहते हैं कि अगर आप 1,000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि 2,000 मिल जाए रेट ऑफ 12% के ऊपर, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो 6.12 ईयर्स आता है। तो हमने क्या किया कि 72 आपके 6 ईयर्स हो गए डिवाइडेड बाय 12% इंटरेस्ट है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने कहा कि हमारा 6 ईयर्स के अंदर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाती है, वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल हो जाती है अगर आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट की सूरत में जो है उसको डिपॉजिट करवाएं। Assume that you need $1,000 in 2 years, ठीक है जी, आप कहते हैं कि 2 सालों में आपने $1,000 की आपको जरूरत। Let's examine the process to determine how much you need to deposit today at a discount rate of 7% compounded annually। तो अगर आप उसको जो है वो डिस्काउंट रेट 7% compounded annually के ऊपर आज करें तो आपको कितनी अमाउंट आएगी। 0 ईयर है, 7% है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यूज है और आपको 1000 जो है वो आपको मिलना है आपको। अब प्रेजेंट वैल्यू सिंगल डिपॉजिट फार्मूले में क्या करते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू 0 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। तो हम क्या करें 1000 डिवाइडेड बाय 1.07, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि 7% है तो 1 से जब प्लस हो तो 1.0 रेज टू पावर 2 आपने से किया, तो आपने जो आंसर आया 1000 को 1.07 रेज टू पावर 2 से आपने डिवाइड किया, तो आपका जो आंसर आया हुआ है वो आपका कितना है 873.44। ये आपकी 1000 की आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, ठीक है जी। आपका 0 ईयर है, 7% है, आपके 1 ईयर है, फिर 2 ईयर है, फिर आपने फ्यूचर वैल्यूज की तो आपका जो है वो 1000 जो है वो आपके पास मौजूद है। जनरल प्रेजेंट फार्मूला आपका क्या है जी, जनरल प्रेजेंट फार्मूले में क्या होता है जी, प्रेजेंट वैल्यूज इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर 1। और अगर 2 इयर्स के लिए है तो हम क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यूज इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द सेकंड ईयर डिवाइडेड 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 कर देते हैं। जनरली प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला पीवी यानी कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज एन ओवर 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन है, या आप इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज एन इनटू प्रेजेंट वैल्यूज इंटरेस्ट फैक्टर आई एन सी टेबल। अब ये जो दूसरे वाला फार्मूला और के साथ ये क्या है, ये आप क्या कहते हैं कि आप इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते, आप क्या करते हैं कि टेबल से वैल्यू लिख के एक लाइन में लिखते हैं और दूसरी लाइन में आप इसकी जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप जो है वो वैल्यूएशन ऑफ यूजिंग टेबल 2 देखिए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, पहले मैंने फ्यूचर वैल्यूज का दिखाया था, अब ये प्रेजेंट वैल्यू का इस फाउंडेड ऑन द टेबल 2
एट द एंड ऑफ द बुक आप देखेंगे तो पीरियड्स दिए हुए 1 2 3 4 5 और पीरियड्स के सामने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 7 8% दिया हुआ है और डिस्काउंटिंग रेट है जी आपका दूसरे साल आप देखें रेड जो इंक में लिखा हुआ 8.73 यानी कि 8.73 आपका 1000 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7% पे 2 इयर्स का है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.873 को मल्टीप्लाई करेगा तो 873 ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। सारी बात है कि हमने इसको क्या करना था वो राउंड ऑफ करना होता है। अगर आप सॉल्विंग द प्रेजेंट वैल्यू इन कंप्यूटर के अंदर करें कंप्यूट करें आपने जो है वो क्या कहते हैं कैलकुलेटर के अंदर तो हम क्या करते हैं इनपुट्स n2 आ गया 2 प्रेस करेंगे 2 उसके बाद n को प्रेस करेंगे 7 को के बाद 1 और y ये क्या डिनोमिनेट कर रहा है आपके इंटरेस्ट रेट को कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे ये -873.44 PMT 0 है फ्यूचर वैल्यूज आपकी जो है वो 1000 आपकी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। हियर n2 पीरियड एंटर्स एज 2 7% इंटरेस्ट रेट पर पीरियड एंटर एज 7 नॉट 0.07। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट रिजल्टिंग आंसर इन नेगेटिव डिपॉजिट। ठीक है जी। आपने क्योंकि कंप्यूट करना है रिजल्टिंग आंसर नेगेटिव डिपॉजिट लिखेंगे पीएमटी नॉट रेलिवेंट इन द सिचुएशन एंटर एज 0 क्योंकि सिचुएशन में क्योंकि प्रोडक्ट पेमेंट्स नहीं कर रहे तो हम इसे क्या करेंगे 0 लिखेंगे। फ्यूचर वैल्यूज 1000 एंटर एज पॉजिटिव एज यू रिसीव ये आपकी जो 1000 है जिसे आपने एज ए पॉजिटिव क्या करना है वो रिसीव करना है इसलिए आपने इसे 1000 एंटर कर दिया। the story of the problem example में देखें जी Jew Millers want to know how large of the deposit to make so that the money will grow 10,000 in 5 years at a discount rate of 10% कि आपकी जो अमाउंट है वो आपकी जो है वो ग्रो कर जाए 10,000 और आपका जो डिस्काउंट रेट है वो कितना 10% 5 ईयर। तो यहाँ पे 0 1% है 1 2 3 4 5 यानी कि पहले साल में तो जारी बात है कि वो 0 ईयर होता है जिस साल आप डिपॉजिट कर रहे होते हैं। फ्यूचर वैल्यूज को अगर आप देखें तो आपको कहता है जी 10,000 एट द एंड ऑफ द 5 ईयर आपको मिल रहा है। तो इस स्टोरी के अंदर आप देखें जी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द जनरल फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यूज n over 1 plus I raised to power n future value is equal to present value is equal to future values 10,000 है over 1 plus 0.10 raised to power 5। अब ये क्या हो जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 1.10 raised to power 5। अब जो भी इसका आंसर आएगा 10,000 को आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है 6,209.21 डॉलर्स आपका आंसर कैलकुलेट हो। कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म के ऊपर जाके कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट वैल्यूज इज 10,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10% के ऊपर 5 इयर्स के लिए आपने देखना है तो 10,000 आपकी जो है वो आप इनटू आपकी अगर आप टेबल में देखें तो आपकी 10% पे जो 5 पीरियड्स के लिए जो वैल्यू आ रही है वो डिस्काउंट रेट आ रहा है 0.621। 10,000 को 0.621 से करेंगे तो 6,210 ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। अगर ऊपर देखें 209 रेट ये 2 1 है तो यहाँ पे जब आप उसे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये आपका 6,210 आपके जो है वो डॉलर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आपने इसको डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करना है कैलकुलेटर के ऊपर तो आप क्या करें इनपुट n5 के बाद आप n को प्रेस करेंगे उसके बाद 10 के पास 1 ओवर आई के 10 आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट है 5 आपका पीरियड था। पीवी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 6,209.21 को आपने माइनस करेंगे। प्रोडक्ट पेमेंट आपकी 0 है आपने लमसम ही पेमेंट दी है पीएमटी प्रोडक्ट पेमेंट्स होती है अमाउंट ऑफ पेमेंट्स होती हैं। उसके बाद 10,000 आपको फ्यूचर जो है वो चाहिए कि वो आपने बताया कि आपको इन फ्यूचर है वो 10,000 चाहिए। अब जब आप इसको एंटर करके प्रेस करेंगे तो क्या द रिजल्ट इंडिकेट्स दैट 10,000 फ्यूचर वैल्यू दैट विल अर्न 10% एनुअली फॉर 5 ईयर रिक्वायर्स a 6,209.21 डिपॉजिट टुडे ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू यानी कि वो ये आपको ये बता देता है कि अगर आपको 10,000 का रिटर्न चाहिए आफ्टर 5 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो आज आपको कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे वो 6,209 रुपये और 21 पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। ये आपकी क्या कहलाती है ये प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी कहलाती है जी। काफ़ी है क्योंकि 45 मिनट्स का आपको जो है वो लेक्चर भेजना है और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हुए हैं और होप स्टूडेंट्स आपने जो है वो चीज़ों को इजीली जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। आपको जो है वो किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। ठीक है जी। अभी लेक्चर के साथ ही मैं आपको अभी जो है वो जितना हमने टॉपिक किया इसके ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट और एक क्विज आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ और काइंडली आपने वो उस क्विज को और असाइनमेंट को गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मुझे रिटर्न करना है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह जो है वो इंटरेक्टिव होगा उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस जो है वो जो आपने फेस की उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज़।